Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have completed reading with our poem number 11. The name of the poem is For Anne Gregory, right? So we have read the poem, we have seen the explanation and we have also discussed all the literary devices that were used in the poem, right? So I hope the poem is very much clear to you all, and in today's video we will see the comprehension part, we will solve the questions that are there in the poem, right? So let's begin. Question first. What does the young man mean by great honey-colored ramparts at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? Okay, so in this question we have to tell, in the poem we have read some phrases like great honey-colored ramparts at your ear. Okay, so first of all we have to tell what it means, great honey-colored ramparts at your ear. Okay, and secondly we have to tell one more phrase was there, thrown into despair. So we have to tell what it means also, right? So we have to tell the meaning कि poet ने ये जो words है, जो phrases हैं, ये किस reference में use की थी, poet का क्या meaning था इन phrases को use करते समय, that we have to write. Okay, so let's see the answer. The young man in the poem praises the great honey-colored hair of Anne. Okay, so first of all we have to remember कि जो phrases हैं ये कहाँ से ली गई हैं, they are from the first stanza of the poem, right? And who is the speaker of the first stanza? The young man, right? So we have to write that the young man in the poem praises the great honey-colored hair of Anne, right? वो क्या कर रहा है, जो Anne Gregory है जिसके hair कैसे हैं, honey-colored hair है, golden color है और we can say yellow color hair है, वो उनको admire कर रहा है, वो को प्रेज कर रहा है. क्लियर? Anne's hair have been called a rampart, meaning a wall. और उसने young man ने क्या कहा है, he called that the beautiful hair of Anne Gregory are like ramparts, like, right? And what is ramparts? Ramparts means a wall, or we can say a defensive wall, a protective wall. Okay, it is called so because her hair acts as a wall as they prevent young men from looking beyond those yellow hair and into her soul. Okay, और ये जो comparison किया गया है उसके beautiful yellow hair को जो रैम्पेट से कंपेयर किया गया है, ये कंपैरिजन किया गया है किस बेस पे, सो वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है दैट इट इज कॉल्ड सो बिकॉज हर हेयर एक्ट्स एज अ वॉल, राइट? सो पॉइट ने, यंग मैन ने उसके एन ग्रेगरी के येलो हेयर को रैम्पर्ट्स इसलिए कहा है बिकॉज हर येलो कलर हेयर वर हैविंग अ रोल ऑफ अ वॉल, दे वर प्लेइंग अ रोल जस्ट लाइक अ रैम्पर्ट बिकॉज दे प्रिवेंट यंग मैन फ्रॉम लुकिंग बियॉन्ड दो येलो हेयर एंड इनटू हर सोल, राइट? सो जैसे जो रैम्पर्ट्स होते हैं, जो डिफेंसिव वॉल्स होती हैं किसी कैसल की और वी कैन से किसी फोर्ट की, राइट? सो वो क्या करती हैं, वो उस फोर्ट को, कैसल को प्रोटेक्ट करती हैं. ओके, और किसी भी आउटसाइडर को अंदर आने से रोकती हैं, राइट? सिमिलरली जो एन ग्रेगरी के ब्यूटीफुल येलो कलर, हनी कलर और वी कैन से गोल्डन कलर हेयर हैं, वो भी रैम्पर्ट्स की तरह हैं बिकॉज उनकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है. बिकॉज ऑफ द ब्यूटी जो यंग मैन है वो वहीं तक आके रुक जाते हैं. वो एन ग्रेगरी की जो सोल है, सोल मतलब वो जो इसका जो रियल सेल्फ है, जो उसका इनर सेल्फ है, जो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, वो वहाँ तक देख ही नहीं पाते हैं और वो सिर्फ उन्हीं हेयर से अट्रैक्ट होके दे जस्ट फॉल इन लव विथ हर. क्लियर? The speaker said that young men are thrown into despair as her hair are so attractive and pretty that the young man cannot look at anything else and hopelessly fall in love with her. Okay, and secondly we have to explain the phrase thrown into despair. So what it means? It means that जो Anne Gregory के hair हैं, उसके hair जो है they are so attractive and they are so pretty that young man cannot look at anything else. Okay, so जो young man है वो उसकी physical beauty, उसकी outer beauty से ही attract हो जाते हैं और उसके अलावा वो कुछ देखना ही नहीं चाहते, वो कुछ देख ही नहीं पाते हैं. ओके, और वो होपलेसली उसके साथ उसको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे लव करना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर? दे लव हर फॉर हर येलो हेयर एंड नॉट फॉर हर इनर ब्यूटी और हर नेचर एंड पर्सनैलिटी, राइट? और वो एन ग्रेगरी को लाइक करते हैं बिकॉज ऑफ हर येलो हेयर, बिकॉज ऑफ हर आउटर ब्यूटी और वी कैन से बिकॉज ऑफ हर फिजिकल अपीयरेंस. क्लियर? और वो उसकी इनर ब्यूटी को तो जानते ही नहीं है, उसका जो एक रियल नेचर है और जो उसकी रियल पर्सनालिटी है उससे वो टोटली अनअवेयर होते हैं, उसको जानते तक नहीं है और सिर्फ उसके आउटर अपीयरेंस, उसकी आउटर ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होके दे जस्ट स्टार्टेड लाइकिंग हर. क्लियर? इसीलिए ये फ्रेजेस फॉर्म में यूज की गई हैं. ओके,
Next question, what color is the young woman's hair? What does she say she can change it to? Why would she want to do so? Okay, so in this question we have to tell first of all what is the color of the young woman's hairs. Clear? Secondly, we have to tell that in the second stanza जो ये young woman के dialogues थे, so in that stanza she said that she would change the color of her hair. Clear? So we have to tell कि उसने second stanza में क्या कहा था कि वो अपने हेयर का जो कलर है वो कैसे कैसे चेंज कर लेगी, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट शी इज हैविंग टू हैव द न्यू कलर ऑफ हर हेयर, राइट. एंड वी हैव टू टेल दैट व्हाई शी इज सेइंग सो, व्हाई शी वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर. क्लियर? सो लेट्स सी द आंसर. द कलर ऑफ द यंग वुमेन्स हेयर इज येलो लाइक द कलर ऑफ हनी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कलर ऑफ द हेयर? द कलर ऑफ द हेयर ऑफ द यंग वुमेन इज येलो. इट इज जस्ट लाइक द कलर ऑफ हनी, राइट. इसीलिए उनको कहा गया था honey colored hair. Clear? She can color it brown, black and carrot, right. And in the second stanza she said that she can change the color of her hair. She can change the color to brown or black or to carrot. Clear? She means that she can change the color of her hair as she desires. उसका कहने का ये मतलब था, वो ये कहना चाहती थी कि जो उसकी आउटर ब्यूटी है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, that is changeable. She can change the color of her hair. She implies that her outward beauty is changeable and not permanent or real, right. So what she actually wanted to say? She wanted to say that her outward beauty or her physical beauty or her physical appearance, it is changeable and it is not permanent or it is not real. Okay, she wants young man to look into her soul and love her for her inner beauty, and she also wanted a true love in her life. और true love का मतलब क्या था? वो ये चाहती थी कि जो भी young man उसको love करे, उसको like करे, so वो जो love है, वो जो likeness है, वो because of her inner beauty होनी चाहिए, because of her inner qualities, right. उसमें क्या क्या qualities है, क्या personality है, क्या उसका nature है. Okay, so because of those qualities वो love होना चाहिए, ना कि उसकी outer beauty, उसके फिजिकल अपीयरेंस पे बेस वो लव होना चाहिए. क्लियर? To show this desire, she takes the help of her hair's color, which can be changed as per the fashion, which dwells more on outward show of beauty, right. So उसकी क्या desire है कि जो भी young man उसको like करे, उसको love करे, so that love should be based off her inner qualities, right, of her inner personality, not because of her outer beauty or her physical appearance, right. So this was her desire, and to show his desire, she takes the help of her hair's color, right, which can be changed. So वो ये दिखाना चाहती है कि जो physical beauty होती है, that is not permanent, that is not real, right. So इसीलिए वो कहती है कि वो अपने हेयर कलर को चेंज कर सकती है as per the fashion. जो फैशन के अकॉर्डिंग हेयर कलर होगा, वो कलर वो अपने हेयर में अप्लाई कर सकती है, राइट. और वो दिखाना चाहती है कि ये जो आउटवर्ड ब्यूटी होती है, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट रियल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Objects have qualities which make them desirable to others. Can you think of some objects and say what qualities make one object more desirable than other? Imagine you were trying to sell an object. What qualities would you emphasize, right? So in this question, first of all, we are given with a statement. What is the statement? That if we consider some objects, right? So each and every object has some or other qualities which make them desirable to others. Clear? So we have to tell that can we think of some objects, it may be a car, a phone, a dress or anything, and say what qualities make one object more desirable than other, right. तो जितने भी objects होते हैं, जितने भी inanimate चीज़ें होती हैं, objects होते हैं, things होती हैं, उन सब में कुछ ना कुछ qualities होती हैं, and because of that qualities they are more desirable to us, right. So वो हमें यहाँ पे discuss करना है. Next we have to imagine that we are trying to sell some of the object. So we have to tell that on what qualities we would emphasize, right. कौन कौन सी qualities है जो हम उस object में show करना चाहेंगे, present करना चाहेंगे, describe करना चाहेंगे, that वो qualities जो उस object में है, ताकि वो जो object है वो हम बहुत easily sell कर सके. Clear? So let's see the answer. Objects have many qualities that make them desirable to others. So this is very true thing that in all the objects there are some or other qualities. Because of those qualities they are desirable to others. Qualities of durability, modernity, easy handling, low maintenance, etc. make one object more desirable than others, right? So they are some of the qualities like durability, modernity, easy handling, low maintenance, right? So because of these
क्वालिटीज़, जिन ऑब्जेक्ट में क्वालिटीज़ होती हैं वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं दे आर मोर डिज़ायरेबल दैन अदर ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट हैविंग दीज क्वालिटीज़ और सच क्वालिटीज़, राइट। सपोज आई एम सेलिंग अ ड्रेस, राइट। अब हमें नेक्स्ट हमें एक इमेजिन करना था दैट हमें कोई ऑब्जेक्ट सेल कर रहे हैं, सो कौन कौन सी क्वालिटीज़ पे हम एम्फेसाइज करेंगे, राइट। सो सपोज आई एम सेलिंग ए ड्रेस, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन इट्स चार्मिंग कलर, सिंपल एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन, इकोनॉमिक प्राइस, कंफर्टेबल फैब्रिक, ड्यूरेबिलिटी एंड सो ऑन, राइट। सो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि हम उसमें एम्फेसाइज करेंगे ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो ड्रेस है, वो जल्दी से सेल आउट हो जाए, राइट। सो कुछ क्या क्या हो सकती हैं, इट मे बी द कलर, इट मे बी द डिज़ाइन, इट मे बी द प्राइस, राइट, एंड द फैब्रिक, राइट। सो ये कुछ क्वालिटीज़ है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन राइट योर ऑन आंसर, यू कैन पिक एनी ऑब्जेक्ट एंड यू कैन राइट सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what about people? Do we love others because we like their qualities, whether physical or mental, or is it possible to love someone for themselves alone? Are some people more lovable than others, right? So in the previous question we talked about the objects, clear, but in this question we have to tell about people, right? So ये चीज़ तो clear है कि जो objects होते हैं उन objects में कुछ ना कुछ qualities होती हैं and because of those qualities वो object हमारे लिए ज़्यादा desirable बन जाते हैं, clear। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस अबाउट पीपल, दैट व्हाट अबाउट पीपल, क्या पीपल को भी हम इसीलिए पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज, वेदर सम फिजिकल और सम मेंटल क्वालिटीज, राइट। नेक्स्ट वी हैव टू टेल दैट इज इट पॉसिबल टू लव समवन फॉर देमसेल्व्स अलोन विदाउट कंसिडरिंग देयर क्वालिटीज, रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स कैन वी लाइक सम पीपल, आर सम पीपल मोर लवेबल देन अदर्स। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स here, so let's see the answer. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड फॉर द पीपल, राइट। सो इन सब चीज़ों का अगर हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, सब लोगों की ओपिनियन सेम नहीं हो सकती है बिकॉज सब लोगों का एटीट्यूड, सब लोगों का जो प्रोस्पेक्ट होता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, राइट। सम लाइक रियल क्वालिटीज़ एंड सम लाइक टू फेक, राइट। यही रीज़न है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस वर्ल्ड में जिनको लोगों के रियल क्वालिटीज़ पसंद आती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें रियल क्वालिटीज़ चाहे ना हो but they want to fake, right? We have to overlook certain weaknesses of the human beings in different situations, right? और एक चीज़ ये भी बिल्कुल सही है कि सभी लोगों में कुछ ना कुछ वीकनेस होती हैं, तो हमें उन वीकनेस को क्या करना चाहिए, हमें उनको ओवरलुक करना चाहिए, हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, हमें उन्हें नेग्लेक्ट करना चाहिए। एसेंशियली वी लव अदर्स बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज़, वी ऑल्सो लव देम फॉर देमसेल्व्स अलोन। और ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं कि हम लोगों को भी इसीलिए पसंद करते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जो कि हमें अच्छी लगती है, वेदर इट इज़ अ फिजिकल क्वालिटी और इट इज़ अ मेंटल क्वालिटी, राइट। सो बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी हम उन्हें लाइक करना, हम उन्हें लव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ लव ऐसे भी होते हैं जो कि किसी क्वालिटी पर डिपेंड नहीं होते, बट वो लव का बेस होता है हम दूसरे पर्सन को एज अ पर्सन हम लाइक करते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिटीज़, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेदर ही और शी इज़ और इज़ नॉट ब्यूटिफुल। और इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम दे सकते हैं तो वो एग्जाम्पल है एक मदर के लव का, राइट। सो जितनी भी मदर्स होती हैं वो अपने चाइल्ड से विदाउट एनी कंडीशन लव करती हैं, उनका लव जो होता है दैट इज़ अनकंडीशनल लव, चाहे उनका चाइल्ड में कुछ क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, राइट। फिजिकली क्वालिटी और वी कैन से मेंटल क्वालिटी है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिटी ईच एंड एवरी मदर हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर देयर किड्स, राइट। सो इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। There are some people more lovable than others. It is because of their qualities of head and heart, right? Next चीज़ जो हमें डिस्कस करनी थी कि क्या ये बात सच है कि some people are more lovable। कुछ ऐसा होता है कि लाइक किसी सपोज आपकी क्लास में भी कुछ किड्स ऐसे होंगे यानी जिन्हें जो लोग ना ज़्यादा पसंद करते हैं, who are more popular, right? So ऐसा भी होता है, इस तरह के इंस्टांसेस भी, इस तरह के एग्जाम्पल भी हम अपने आसपास देखते हैं जहाँ कुछ लोग ज़्यादा लवेबल होते हैं, they are more lovable because of their qualities of
हैड क्वालिटीज़ ऑफ हार्ट, राइट, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से एवरीवन जो है, हर एक व्यक्ति जो है उन्हें पसंद करता है, उन्हें लाइक करता है, राइट। सो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें ज़्यादा क्वालिटीज़ है, अब वो क्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल ही हो, राइट, क्योंकि फिजिकल क्वालिटीज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट, बट वी कैन चेंज आवर इनर क्वालिटी। हम अपने अंदर की क्वालिटीज़ चेंज कर सकते हैं, हम अपने अंदर अच्छी फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दोज फीलिंग्स, बिकॉज ऑफ दोज क्वालिटी भी हम ज़्यादा पॉपुलर बन सकते हैं, हम ज़्यादा लवेबल बन सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, you have perhaps concluded that people are not objects to be valued for their qualities or riches rather than for themselves, but elsewhere Yeats asked the question, how can we separate the dancer from the dance? Is it possible to separate the person himself or herself, right? So जो हमने last 2 questions में जो हमने discussion किया है about the objects, about the people, so after that discussion we are given with one more statement that it is possible that maybe हमने जो conclusion ड्रॉ किया है वो ये है कि जो पीपल है दे आर नॉट लाइक द ऑब्जेक्ट्स, जिनकी वैल्यू जो है बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़ उनकी वैल्यू होती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है होती है, वो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, राइट, बट जो पीपल होते हैं दे आर नॉट लाइक द ऑब्जेक्ट, उनकी जो क्वालिटीज़ है उनकी वजह से उनकी वैल्यू नहीं होती है। ओके, बट जो हमारे पॉइंट हैं W.B. Yeats, राइट, उन्होंने ये क्वेश्चन एक बार पुट ऑन किया था कि हाउ कैन वी सेपरेट द डांसर फ्रॉम द डांस, राइट, यानी कि अगर हम किसी डांसर को पसंद कर रहे हैं, कोई एक परफॉर्मर है हमारे सामने जिसका डांस हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सो कैन वी सेपरेट द डांसर फ्रॉम द डांस? ओके, सो वी हैव टू टेल दैट इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ? ओके, फ्रॉम हाउ द पर्सन लुक्स, साउंड्स, वॉक्स एंड सो ऑन। जो एक पर्सन की क्वालिटीज़ होती हैं, जो एक पर्सन की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि किस तरह से वो दिखता है, किस तरह से वो साउंड करता है, वॉक करता है, तो क्या उन चीज़ों से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थिंक ऑफ हाउ यू और अ फ्रेंड और मेम्बर ऑफ योर फैमिली हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स, हैज़ योर रिलेशनशिप ऑल्सो चेंज्ड, इन वॉट वे, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन यू हैव ऑल्सो टेल अबाउट योर फैमिली मेंबर, अबाउट योर फ्रेंड, कि आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके किसी क्लोज वन, आपके किसी नोन फ्रेंड या फैमिली मेंबर का भी जो बिहेवियर है वो कुछ टाइम से चेंज हो चुका है। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस दैट यू हैव टू राइट? सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। आप सबको अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्टार्टिंग में हमसे डिस्कशन करने को कहा गया है, लेट्स सी द आंसर। उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज rather difficult to separate the person himself or herself from how the person behaves. So it is something very difficult task कि हम कैसे एक पर्सन को सेपरेट कर सकते हैं उस तरीके से जो उसका वे ऑफ वॉकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, राइट, उससे हम एक पर्सन को सेपरेट करना, इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट, बट अ सर्टेन डिस्टिंक्शन कैन बी मेड, राइट। तो हम पूरी तरह से सेपरेट तो नहीं कर सकते, बट स्टिल वी कैन मेक सम काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन। एक्चुअली मैन और वुमेन मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही और शी इज नॉट वन मैन, ही और शी हाइड्स सेवरल पर्सन्स इन देम, शी और ही मस्ट बिहेव इन कीपिंग विद दोज थिंग्स इन माइंड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एवरी पर्सन हैज़ मैनी पर्सनैलिटीज़, राइट, अकॉर्डिंग टू मूड, ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो बिहेव करता है। अगर किसी का मूड किसी सिचुएशन में अच्छा है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही हैप्पी रहेगा, क्योंकि टाइम चेंज होता है, सिचुएशंस चेंज होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मूड, एवरी पर्सन जो होता है वो बिहेव करते हैं। सो दिस थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड एंड अकॉर्डिंग टू दिस थिंग ओनली वी शुड जज अनदर पर्सन, राइट। और हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक पर्सन की जो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे पर्सन उसके अंदर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हाइड रहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मूड जो होते हैं वो टाइम टू टाइम रिवील होते रहते हैं। क्लियर? और इसके आगे यू हैव टू राइट योर अबाउट योर ऑन एक्सपीरियंस कि क्या आपके फैमिली में, आपके किसी फ्रेंड में भी आपने ऐसा देखा है जिसका जो बिहेवियर एस्पेक्ट है वो चेंज हुआ है, आपके रिलेशनशिप उसके साथ चेंज हुए हैं। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, यू हैव टू राइट हियर कि क्या आपके रिलेशनशिप जो है किसी के साथ वो सिर्फ क्वालिटीज़ पे डिपेंड करते हैं, उसके जो उसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं क्या सब उसी पे डिपेंड करते हैं। सो यू हैव टू राइट
had your own experience here. Okay, so students, we have completed all the questions here. I hope the poem and all the questions, everything is very much clear to you all. This poem for Anne Gregory, it is really having a very good message for all of us. Okay, so I hope everything is very much clear to you all. In the next video we will start with our next chapter. So see you in the next video. Thank you.